کافی ادیبوں اور شعراء کو انہوں نے اپنے پروگرام بزم کے ذریعے شناس کرایا ہے. میں انجم عثمانی صاحب سے درخواست کروں گی کہ وہ تشریف لائیں. بہت شکریہ اردو میں آرام اس بات کا موقع دے رہے ہیں کہ میں مجھے بالکل انہوں نے پہلے نہیں بتایا تھا کہ آپ کو بولنا بھی بھائی کی محبت میں آ گیا اور اختر بھائی صاحب کی ناراضگی خوف سے آ گیا. لیکن جب آ گیا ہوں تو کچھ کہنا ہے. مجھے براڈ کاسٹنگ کو کچھ نہیں کہنا کہ میں بالکل لمبی تقریر اور وہ ٹیکنیکل باتیں نہیں کرنا چاہتا. اس پر موضوع پر جو مجھے کرنا تھا وہ میں کر کے چھاپ کے یونیورسٹیز کو دے چکا ہوں پڑھنے میں. میں تو صرف یہ کہنے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ جس شخص کا آپ لوگ یہاں استقبال کر رہے ہیں, جس کے حساب میں ہم لوگ یہاں حاضر ہیں, مجھے اس بات کا فخر حاصل ہے کہ میں اسی درسگاہ کا پروردہ ہوں جہاں کے وہ ہیں. وہ دارالعلوم کے فارغ ہیں, میں بھی خود اسی سے دارالعلوم کا فیض ان کو وہاں تک ہے. اور اب موجودہ حالات میں ایک آدھ معاملہ ایسا سامنے آیا جیسے ابھی وسیم الرحمان صاحب جیسے ابھی IAS کے میں سلیکٹ ہوئے, اس سلسلے میں گفتگو ہوتی رہی. سچی بات یہ ہے کہ ہمارے صاحب اعزاز اس بات کو جانتے ہیں, آپ لوگ بھی محسوس کرتے ہوں گے کہ دیوبند یا کوئی بھی مدرسہ جو وہاں طریقۂ تعلیم ہے, وہ طریقۂ تعلیم اتنا مؤثر ہے آج بھی کہ اگر وہاں کا طالب علم صحیح طور سے پڑھ لیتا ہے اور اس کو تھوڑا سا کسی بتا دیا جاتا ہے باقی چیزوں کے بارے میں بھی, تو وہ لوگ جو مدرسوں میں نہیں پڑھتے ان سے بہت زیادہ کامیابی حاصل کر سکتا ہے ان کے مقابلے. ہمارے یہاں یونیورسٹی میں شاید ہی کوئی یونیورسٹی ایسی ہو جہاں پر اکیڈمیشینس جو ہیں وہ مدارس کے فارغ نہ ہوں. براڈ کاسٹنگ میں جس میں ہم لوگ ہیں اس میں یقیناً لوگ کم ہیں, اور باقاعدہ سلیکٹ ہو کے شاید UPSC کو میرے خیال میں مجھ سے پہلے یہ بات ہے مجھے یاد نہیں کوئی دارالعلوم کا فارغ میں سے سلیکٹ ہو کے براڈ کاسٹنگ میں گیا ہو. لیکن وہ لوگ جو اسٹاف آرٹسٹ کے طور پر گئے تھے وہ بہت سارے دارالعلوم کے فارغ میں, مدرسے کے فارغ میں بھی تھے, خود دارالعلوم کے بھی بہت سارے ایسے لوگ تھے. میں پریس کلب کا بہت شکر گزار ہوں, مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ ایسے لوگوں کا بھی اعزاز اب کرنے لگا ہے کہ جن کی صرف امامت مانی جاتی تھی اور ان کا اعزاز اس طرح نہیں کیا جا سکتا. بہت بہت شکریہ. بس آپ سے درخواست کروں گی کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. اسٹیج پہ بیٹھ کے مہمان سب دوستوں, میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں ساجد صاحب کا. ساجد صاحب نے مجھے یہاں آنے کا موقع دیا. میں بیٹھا سوچ رہا تھا جب اردو پریس کلب کے بارے میں نے کچھ دن پہلے ایک اخبار شروع کیا ہے. ویسے تو قومی پترکہ ہندی میں اخبار 25 سال سے چل رہا ہے. میرے والد صاحب نے مجھے بلا کر کہا کہ بیٹا بات یہ ہے کہ میری عمر تو اس وقت 84 برس کی ہو گئی ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے خاندان میں اردو رہے, اور ہم لوگ جیلم سے آئے تھے اور ہمارے علاقے میں اردو ہی ہماری خاندانی بھاشا رہی. ہندوستان پاکستان بنا, ہم ادھر آگے بچوں نے اردو پڑھی نہیں, یا پنجابی پڑھی یا ہندی پڑھی یا انگلش پڑھی, انہوں نے اردو نہیں پڑھا. میں نے کچھ برس پہلے ان کی اردو سے جو محبت تھی, جو خط و خطاب آتے تھے لاہور سے, راول پنڈی سے, جیلم سے, جو والد صاحب کے دوست متر چٹھیاں لکھا کرتے ہیں وہ پڑھ پڑھ کر سنایا کرتے تھے, میں ان کی وہ محبت دیکھتا تھا. تو میں نے یونیورسٹی سے اردو پڑھا کہ مجھے لگا کہ میرے والد جو ہیں وہ اردو سے بےحد پیار کرتے ہیں. تو کچھ روز پہلے انہوں نے مجھے کہا کہ گرچرن, میں چاہتا ہوں کہ اردو جو ہے وہ تو جانتا ہے, تو اردو کا ایک اخبار ہی شروع کر دو. تو قومی پترکہ ہندی میں ہم نکالتے ہیں, ITO میں ہمارا دفتر ہے, ٹائمس آف انڈیا کے برابر میں, پریس ہمارا ٹونکا سٹی میں. تو ہم نے 2 مہینہ پہلے قومی پترکہ اردو میں شروع کیا.
تو ہنستے ہوئے مجھے کہنے لگے کاکا مینوں لگتا ہے کہ شاید تو کلا ہی سردار ہے جڑا اردو کا اخبار کر رہے ہیں ہندوستان دے وچ۔ تو جو محبت ہے نا وہ بھاشا کے ساتھ، زبان کے ساتھ۔ میرے بھائی ہیں ساجد، انہوں نے بہت کام کیا ہے 84 رائٹ میں، اور کام کیا ودواؤں کے بیچ میں، ہزاروں ودواؤں کے بیچ میں کام کرنے والا ایک ہی نام تھا ساجد۔ سپریم کورٹ میں مقدمے لڑے، ہائی کورٹ میں لڑے، ویڈوز کے لیے لڑے، آرفن کے لیے لڑے، اور میں سمجھتا ہوں پتہ نہیں مسلم سماج میں کتنی جانکاری ہے لوگوں کو، پر بہت بڑی گنتی میں جو ودوائیں، یتیم بچے اور 84 کے وکٹم لوگ تھے وہ ساجد کے نام کو ایسے جانتے ہیں جیسے کوئی پوجنے والا، کوئی سجدہ کرنے والا۔ تو مجھے آج اس وقت اخبار کے دفتر میں ہونا چاہیے کیونکہ خبریں اس وقت آ رہی ہیں، اور آج آپ جانتی ہیں بازار بہت گرم ہے اور لوگ چپکے ہوئے ہیں، اور میں یہاں پہ بیٹھا ہوں کیونکہ مجھے فون آ گیا ساجد کا، ببر صاحب آپ نے پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے؟ تو میرے مینیجر میرے ساتھ ہیں، ناصر صاحب ہمارے گروپ کے مینیجر ہیں، اب وہ کہنے لگے ناصر صاحب کہ صاحب آپ جائیں گے تو پیچھے بہت آج تو بڑا ہیوی ہے اور آپ مجھے بھی ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی 15 منٹ کے لیے جائیں گے، تو کہتے ہیں جی 1 گھنٹہ تو جاتے لگے گا، 1 آتے لگے گا، آپ 15 منٹ میں کیسے آئیں گے؟ میں نے کہا کیسا بھی ہو جانا ہے کیونکہ ساجد کا فون ہے۔ تو بات تھی تو محبت کی، ایک تھی اردو کے ساتھ محبت کہ اخبار شروع کیا تو چلنا ہے، دوسرا تھا کہ ساجد نے کہا، تیسرا ان کی مہربانی کی وجہ سے آپ سب کے دیدار ہو گئے۔ میں بالکل اردو پریس کلب کے جتنے بھی موجود سجن ہیں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اور میرے لیے کوئی بھی سیوا کا موقع ہوگا میں اس میں سب سے آگے رہوں گا، اور جو سجن باہر سے آئے ہیں میں ان کا بھی بہت استقبال کرتا ہوں، اور انہی کی وجہ سے آپ کے دیدار ہوئے ہیں، اور آگے بھی میں سمجھتا ہوں کہ پریس اردو کلب میں آئیں گے تو آگے پھر اپنے وچار بھی رکھوں گا اور میں کافی وقت گزاروں گا، پر میں آج ضرور آپ سے معافی مانگوں گا کہ میں تھوڑا جلدی جاؤں گا، اور پھر مجھے لگتا ہے کہ آپ مجھے اس کے لیے معاف کریں گے۔ میں سب کا بہت شکر گزار ہوں، اور ساجد صاحب آپ کا خاص طور پہ میں آپ سب کے ساتھ شامل ہوں 2 باتوں میں، لائق اللہ صاحب کا استقبال کرتا ہوں اور طارق فیضی کا شکریہ۔ ایسے نوجوان شاید بڑی مشکل سے ملتے ہیں، نوجوان کے آج کل تو بوڑھے بھی نہیں ملتے جو بارات خود سجا دیں اور اس کے بعد غائب ہو جائیں۔ جی طارق انہی لوگوں میں سے ہیں جو دوسروں کو ہمارا دور تو خود نمائش کا دور ہے اور خود ستائی کا دور ہے۔ میں بہرحال طارق فیضی کی جن لوگوں نے طارق فیضی کو جن لوگوں نے جنم دیا اور جنہوں نے تربیت کی ان کو بھی سلام کرتا ہوں۔ لائق اللہ صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ میرٹھ کے سٹلہ سے ان کا زندگی کا سفر شروع ہوا، وہیں تعلیم ابتدائی حاصل کی، ازہر ہند دارالعلوم دیوبند سے فضیلت حاصل کی اور فراغت حاصل کی، اور پھر ازہر شریف میں قاہرہ جا پہنچے، ازہر شریف سے استفادہ کیا، BA کیا، MA کیا، MPhil کیا۔ عین شمس یونیورسٹی جو ایک اور بہت مقتدر جامعہ ہے اور بہت تاریخی ادارہ ہے، وہاں سے انہوں نے B.Ed کی سند لی، اور ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ 11 سال کے اپنے قیام میں مصر کے وہ انہوں نے صرف تعلیمی حاصل نہیں کی، اور جو ایک اہم بات تھی وہ یہ کہ حصول تعلیم کے ساتھ
حصول تعلیم کے ساتھ انہوں نے اردو نشریات سے اپنا رشتہ جو ہے وہ استوار کیا اور ریڈیو قاہرہ کی اردو سروس جو ہے اس سے وہ وابستہ رہے. اس کے بعد وہ سعودی عرب آ گئے اور سعودی عرب میں بھی پہلے وزارت انصاف سے وابستہ ہوئے، لیکن جو ایک بیوروکریسی ہوتی ہے اس کا حصہ بننا انہوں نے منظور نہیں کیا اور ریڈیو سعودی عرب کی اردو سروس جو ہے اس سے وابستہ ہو گئے اور یہ ان کا تعلق اور رشتہ جو ہے تقریباً 20 سال کا ہوا چاہتا ہے. ایک اور بات جو ہے وہ یہ کہ انہیں ایک بات کا اور اختصاص اور امتیاز ان کا ہے اور وہ یہ کہ سعودی عرب سے بلکہ پورے خلیج میں جو اردو کا پہلا روزنامہ نکلا اس کی منصوبہ بندی کے مرحلے سے آج تک 1994 میں اردو نیوز شروع ہوا، اس سے وہ آج تک وابستہ ہیں اور یہ بہت دلچسپ بات ہے کہ اس کے 4 ایڈیشن نکلتے ہیں، جدہ سے، ریاض سے، بحرین سے اور دبئی سے. اتنا بڑا اخبار اور اس کا جو جمعہ ایڈیشن ہے روشنی، اس کا ان کے یہاں جو ویکلی میگزین ہے اردو میگزین، ان سب سے وہ وابستہ ہیں. اور تو جدید عصر جدید میں جو بھی ذرائع ابلاغ کی صورتیں ہیں وہ چاہے پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا، جیسا کہ وسیم کہہ رہی تھی، وہ دونوں سے وابستہ ہیں. اور جیسا کہ والد صاحب کہہ رہے تھے کہ میڈیا جو ہے وہ آپ کو اطلاعات نہیں دیتا ہے، اثرات مرتب کرتا ہے. اور تو یہ کام جو ہے لائق اللہ صاحب کر رہے ہیں. ہمارے لیے سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ اور میں جس کے لیے ان کی بہت قدر کرتا ہوں کہ وہ جہاں بھی رہے انہوں نے اردو کے فروغ کے لیے کام کیا. یہ بڑی غیر معمولی بات ہے. معاف کیجیے گا، پیسے کمانے کے اور اس سے زیادہ بہتر پیسے کمانے کے وہ موجود تھے، اور لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے ان کی لے چاہے حجازی رہی ہو لیکن نغمہ ہندی ہی رہا ہے. اور جسے کہتے ہیں کہ نطق عربی جو ہے اس میں ہمیشہ ذہن ہندی ہی آپ کو نظر آئے گا. یہ ان کی بڑی خوبی ہے جس کے لیے کہ ہم ان کی قدر کرتے ہیں اور اسی حوالے سے ہم ان کا استقبال کرتے ہیں. انجم عثمانی صاحب نے کہا کہ اردو کلب کا شکریہ کہ جن لوگوں کو امامت کے لیے سمجھا جاتا تھا اب ان کے لیے ہم ضیافت کا بھی اہتمام کرتے ہیں. تو ہمیں تو معلوم ہے اور ہم تو یہی کہ ہم ڈرتے ہیں بلکہ کہ یہ اہل مدارس جو ہیں جب زندگی کے دوسرے میدانوں میں قدم رکھتے ہیں تو وہاں پر بھی امام بن جاتے ہیں جی. اور تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، ظاہری بات ہے کہ ہم تو جانتے ہیں کہ مطلب جب یہ کفر کے میدان میں آتے ہیں اور فسق و فجور کے میدان میں آتے ہیں تو ماشاءاللہ وہاں پر بھی کہ ہمیں سب سے اونچے درجے میں پہنچتے ہیں. اس لیے ایسی کوئی بات نہیں ہے. مگر ہمیں خوشی یہ ہے کہ ان لوگوں نے اردو زبان کی اور جو اس کی تہذیب ہے اور اس کی ثقافت ہے اور اس کی شائستگی ہے اس کے فروغ کے لیے کام کیا ہے. ہم اس حوالے سے ان کا استقبال کرتے ہیں اور میں آپ سب کی طرف سے طارق فیضی کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ بزم آراستہ کی اور اس طرح سے ہمیں اس بات کا موقع دیا کہ ہم لائق اللہ صاحب سے ملاقات کر سکیں اور ان کی باتیں سن سکیں. اور یہ باتیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ مصر اور ہند اور سعودی عرب جو ثقافتی اور تہذیبی روابط ہیں اور اردو کی نئی بستیوں میں خلیج میں اردو کا مستقبل کیا صرف موجودہ نسل تک ہے یا اس کے بعد بھی ہے، اس حوالے سے میرا خیال یہ ہے کہ بات کریں اور سنیں ان کی باتیں تو شاید ہمیں کوئی نئی روشنی ملے گی اور ہمیں آگے سوچنے کے لیے بھی کچھ ملے گا. میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ پروفیسر اختر واصف صاحب. اور اب میں درخواست کروں گی ملک زادہ منظور احمد صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کے ساتھ. مہمانان خصوصی، خواتین و حضرات،
माफूसाल की इतनी गर्द उड़ चुकी है कि पहले मुझे याद नहीं था कि लईकुल्लाह साहब से मेरी पहली मुलाकात कहाँ हुई। लेकिन अभी मैंने उनसे गुफ्तगू करके पूछा कि क्या आप वही हैं जिन्होंने सऊदी अरब में मुझे मदऊ किया था जनाब मजरूह सुल्तानपुरी के साथ, और हमारी गज़लों को आपने रिकॉर्ड फरमाया था। आपने जब उसकी तारीफ की तो बहुत सी बातें मुझे याद आई। हमारी आपकी पहली मुलाकात असीर माल्टा मौलाना वहीद अहमद साहब के साहबजादे फरीदुल वहीदी के मकान पर। मौलाना वहीद अहमद साहब हमारे उन बुज़ुर्गों में हैं जिन्होंने जिद्दोजहद आज़ादी में क़ैदोबंद की सोहबतें भी बर्दाश्त की और आज़ादी के रास्तों को रक़्सां व गलफ़ा तय किया। मेरे अज़ीज़ फरीदुल वहीदी, जिनके भाई आपके जामिया में शोबे अरबी में उस्ताद थे, जद्दा में मुक़ीम हैं। मैं एक मुशायरे के सिलसिले में वहाँ गया हुआ था। आप मुझे तलाश करते हुए मेरे होटल तशरीफ़ ले आए और फिर फरीदुल वहीदी के मकान पर जा कर के आज से बहुत पहले, मेरा ख्याल है कि 10, 11, 12 साल पहले आपने मेरी गज़लों को रिकॉर्ड किया। मजरूह सुल्तानपुरी मेरे साथ थे, उनके गज़लों को रिकॉर्ड किया और उसे नश्र किया। और नश्र उसी वक्त भी नहीं किया बल्कि मेरे दोस्तों ने ये भी बतलाया कि वो आपका कलाम वहाँ से बराबर नश्र होता रहा है और शायद अब तक हो रहा है। तो मेरे करम फरमा है, जाहिर है उर्दू से जो आपकी दिलचस्पी है, दयार गैर में, दयार गैर इन मानों में मैं कह रहा हूँ कि जो उर्दू की सरजमीन नहीं है, वरना जाहिर है कि उस ज़मीन से जो हम लोगों का रिश्ता है वो तो ऐसा अज़ली और अब्दी रिश्ता है कि जिसकी कोई बात ही नहीं की हो सकती। लेकिन दयार गैर इन मानों में कि वहाँ पर उर्दू का वो चलन नहीं है। लेकिन आज जब हम हिंदुस्तान में जो उर्दू की सूरत हाल है उस पर गौर करते हैं तो महसूस होता है कि अगर ऐसे रज़ाकार, ऐसे खुद्दाम उर्दू को हिंदुस्तान में भी मिल जाएं तो मैं समझता हूँ कि कुछ न कुछ उर्दू का काफ़िला आगे बढ़ सकेगा। ये बात आपके इल्म में है कि मेरा ताल्लुक़ लखनऊ से है। लखनऊ के पस मंज़र में उर्दू भी शामिल है, लखनऊ के पस मंज़र में उर्दू तहज़ीब भी शामिल है। लेकिन आपको ये सुन कर के अफसोस होगा कि वो लखनऊ जो एक दबिस्तान की हैसियत से याद किया जाता है, उस लखनऊ में अब मुसलमानों की कब्रों पर जो कतबे लग रहे हैं वो भी उर्दू में नहीं हैं, अरबी में आयतें तो हैं, लेकिन नई कब्रें जो बन रहे हैं उसमें देवनागरी रस्म ख़त में कतबे लगाए जा रहे हैं। बैनर जो मजहबी जलसों के हो रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, वो भी हिंदी में लिखे जा रहे हैं। मुशायरों के भी बैनर कभी कभी हिंदी में नज़र आते हैं। ये सूरत हाल हिंदुस्तान में है और इसे हमको यानी मानना चाहिए। उर्दू का खुशगवार मुस्तक़बिल, उर्दू की नई आबादियों के तहत हमारे बहुत से दानिश्वर आपके सामने पेश करते हैं। मुझे शरफ़ हासिल हुआ है मुख्तलिफ़ ममालिक में जाने का, लेकिन मैंने इन ममालिक में उस नस्ल को पाया जो मेरी उम्र का है, या तो आज़ादी के पहले का है या आज़ादी के फ़ौरन बाद का है, और जो तलाश माश में नई दुनिया में गए हैं या पुरानी दुनिया के कुछ ममालिक के अंदर गए। तो ये सूरत हाल है। बहरहाल वहाँ काम हो रहा है, अदब के हवाले से हो रहा है, ज़बान के हवाले से। ये हम लोग कभी कभी कंफ्यूज कर जाते हैं। अदब की तरक्की को हम ज़बान की तरक्की से ताबीर कर लेते हैं। ये होता है, यही कंफ्यूजन हिंदुस्तान में बहुत दिनों से है। अदब तो आज फारसी में भी हिंदुस्तान में पैदा हो रहा है, अच्छा अदब पैदा हो रहा है, अरबी में भी पैदा हो रहा है। अदब की तरक्की के मानी ये हरगिज़ नहीं है। या दारुल उलूमों में दुनिया के हमारे बहुत से दानिश्वर ये बतलाते हैं कि दुनिया के इतने दारुल उलूमों के अंदर उर्दू पढ़ाई जा रही है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान के दारुल उलूमों में जर्मन भी पढ़ाई जा रही है, फ्रेंच भी पढ़ाई जा रही है, रशियन भी पढ़ाई जा रही है। इस पढ़ाने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि उस ज़बान का चलन अवामी सतह पर हो रहा है। लेकिन ये एक कन्फ्यूजन हमारे यहाँ सबसे बड़ा ये है
کہ مسئلہ کیا تھا بنیادی طور پر. کیا ادب کا مسئلہ تھا, کیا زبان کا مسئلہ تھا, کیا تہذیب کا مسئلہ تھا. ان تینوں چیزوں کو ہم لوگوں نے ایک میں شامل کر دیا. آزاد ہندوستان میں مسئلہ ادب کا نہیں تھا, تقسیم ہندوستان کے المیہ نے اور اسی کے ساتھ ساتھ انتقال آبادی کا جو مرحلہ پیش آیا اس نے ہمارے افسانہ نگاروں کو نہ جانے کتنے موضوعات دیے, اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارا افسانہ عالمی افسانوں سے نگاہیں ملانے کے لیے تیار ہو. ادب کی ترقی تو ہو رہی ہے, لیکن ادب کی ترقی کو زبان کی ترقی پر محمول کرنا میرے خیال میں مناسب نہیں ہے. اور جب اس حوالے سے ہم جائزہ لیتے ہیں تو آزادی کے بعد ہمیں اردو زبان کا انحطاط نظر آتا ہے. یہ بات میں بہت کھل کر کے کہہ رہا ہوں کہ کنفیوژن کی ضرورت نہیں ہونا چاہیے. مسئلہ بنیادی کیا ہے اس کی طرف ہم اپنی نگاہوں کو کیسے جھٹلائیں. جو منظرنامہ ہمارے چاروں طرف بکھرا ہے, ہم دینی جلسوں کے بینر دیکھتے ہیں وہ ہندی میں لکھے جا رہے ہیں, ہم مشاعروں کے بینر دیکھتے ہیں وہ ہندی میں لکھے جا رہے ہیں. کوئی بری بات نہیں ہے, ہندی بھی ہماری زبان ہے, وہ اپنی جگہ پہ ایک مسئلہ ہے, لیکن اردو کی ترقی ہندوستان میں جس طرح سے ہونی چاہیے وہ نہیں ہوئی ہے. اردو زبان کی ترقی جس طرح سے, سارے تصورات تو ختم ہو گئے. آزادی کے پہلے جو زبان کا تصور تھا وہ یہ تھا کہ ہندوستانی زبان ہوگی جو دونوں رسم خط میں لکھی جائے گی, لیکن آزادی کے بعد جو صورتحال ہے وہ بالکل دوسرا منظرنامہ. بہرحال میں اس کے بعد چونکہ شعری نشست بھی ہے اس لیے یہ تو میں آپ کا استقبال کرتا ہوں کہ آپ تشریف لے آئے, اپنے وطن آئے. تعلیم ظاہر ہے کہ دارالعلوم دیوبند سے رہی, تعلقات بھی انہی لوگوں سے رہے جیسے فرید الوحیدی وغیرہ کہ جن کا تعلق دیوبند سے رہا, اچھا خاصا تعلق رہا. تو ہمارے لیے واقعی خوشی کی بات ہے کہ آپ یہاں پر تشریف لے آئے, مگر آپ کو سچی سچی باتیں جو ہندوستان کی ہیں وہ بھی ہم بتانا چاہتے ہیں. اب اس کے بعد نشست ہوگی, تو یہ میری استقبالیہ تقریر تو ہو گئی. نشست کے بارے میں 2-3 جملے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اب مشاعروں کی جو فضا ہے وہ باسی ہو چکی ہے. وہی غزلیں جو ہم کلکتہ میں پڑھتے ہیں دلی میں دہراتے ہیں, بمبئی میں دہراتے ہیں, اور جب سے ETV پر ہر سنیچر کو مشاعرے دکھائے جانے لگے ہیں تو ہماری ایک غزل کو لوگ کب تک سنتے رہیں گے. تو مشاعروں کی فضا باسی ہو چکی ہے. شعراء کرام جو مشاعروں میں شریک ہوتے ہیں اپنے کو دہرانے لگے. تو اس طرح کی جو نشستیں ہیں ان سے مشاعرے کی عروق مردہ میں اب نئے خون کی ضرورت ہے کہ ہم مقامی طور پر چھوٹی چھوٹی نشستیں کریں اور اس میں ان شعراء کا انتخاب کریں جنہوں مشاعرے میں لے جایا جائے تاکہ مشاعروں کے اندر بھی تازگی کا احساس پیدا ہو. مشاعرے اپنی جگہ پر بالکل خراب ہو چکے ہیں ہمارے. دیکھتے ہم کہاں تک سنتے رہیں گے وہی ایک غزل, وہی پرانی غزل. حد یہ ہے کہ بعض شعراء جو آل انڈیا بلکہ بین الاقوامی شہرت کے حامل ہیں وہ جو تمہیدی کلمات کہتے ہیں نثر میں اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. تمہیدی کلمات میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. اس لیے ان چھوٹی چھوٹی نشستوں میں یہ بڑی اہمیت ہے اور یہ ہر جگہ کو منعقد ہونی چاہیے. دانشوروں نے ابھی تک مشاعروں کو نظر انداز کیا ہے. میں ایک دانشکدے میں یہ بات کہہ رہا ہوں, ان لوگوں کو دلچسپی لینا چاہیے اور مشاعروں کے بانیان کے اوپر اثر ڈالنا چاہیے کہ جہاں مطلب آپ ان شعراء کو بلا رہے ہیں جو عوام کے جذب و شوق کی تسلیم کرتے ہیں تو کم سے کم نئے کچھ شعراء کو بھی اپنی فہرست میں شامل کیجیے تاکہ وہ باسی پن دور ہو سکے جو ہمارے مشاعروں میں آج پیدا ہو چکا ہے. تو میں اس نشست کا استقبال کرتا ہوں. ایک بات اور کہتا ہوں, کل بھی میں نے وہ بات کہی تھی کہ فنون لطیفہ میں ہر چیز جو ہے وہ وقت کی رفتار کا ساتھ نہیں دے پاتی. فن تعمیر تاج محل آج اتنا خوبصورت نہیں ہے جتنا شاہجہاں کے زمانے میں تھا. 1000 سال 10,000 سال 50,000 سال ماہ و سال کی گردش وقت کی رفتار صبح و شام کا چکر ایک نہ ایک دن تاج محل کو فنا کر دے. تاریخ بدل جاتی ہے. دیکھیے 2 دن کے بعد پتہ نہیں کیا تاریخ ہو. آج کوئی وزیر اعظم ہے, 2 دن آج جس
सवाल के ऊपर जनरल नॉलेज के आपको 100 में 100 नंबर मिलते हैं। अगर ये तारीख परसों तब्दील हो गई तो आपका लड़का जब वो जवाब लिखेगा तो उसे 0 मिल जाएगा। तारीख तक मैंने जो जोग्राफिया पढ़ा था, उस जोग्राफिया में पाकिस्तान जैसी कोई चीज़ नहीं थी। बर्मा हिंदुस्तान का हिस्सा था, लंका हिंदुस्तान में शामिल था। 14 अगस्त के पहले जनरल नॉलेज का जवाब हिंदुस्तान की चौहद्दी का अगर होता तो पाकिस्तान का नाम कहीं नहीं आता। लेकिन 15 अगस्त को मंजरनामा बदल गया और वही जवाब अगर कोई दे देता जो 14 अगस्त की शब में मैंने दिया था तो वो बिल्कुल खिलाड़ी का खेल खत्म हो जाता है। रक्कासा का रक्स जहां उसके पैरों में दम कम हुआ इख्तिताम पजीर हो जाता सब खत्म। लेकिन अदब, साइंस और टेक्नोलॉजी के नजरियात बदलते हैं। गैलीलियो के पहले ये कहा जाता था कि आसमान चक्कर करता है, ना जाने कितनी लाइब्रेरियां थी, कितनी किताबें थीं, मगर वो सब जब ये साबित हो गया कि आसमान चक्कर नहीं करता, ज़मीन चक्कर करती है, तो वो लाइब्रेरियां दरिया बुर्द करने के काबिल हो गई। हर चीज़ बदल जाती है। सिर्फ अदब ऐसा है कि जिसके ऊपर माहो साल की गर्दिश का कोई असर नहीं पड़ता। अदब का झूठ चलता रहता है, दूसरे वलूम की हकीकतें जो हैं वो तब्दील हो जाती हैं। मीर ने कहा था कि मीर के दीनों मजहब को क्या पूछते हो, उनने तो कशका खींचा, दैर में बैठा कब का तर्क इस्लाम किया। मीर ने न कशका खींचा था, न इस्लाम तर्क किया था, न मंदिर में गए थे। मीर ने मुग़लों के ज़माने में शेर कहा था, मुग़लों की हुकूमत चली गई, अंग्रेज़ों की हुकूमत चली गई, आज़ादी के बाद ना जाने कितनी हुकूमतें आई और गईं, सब ख़त्म हो गई, मगर मीर का वो झूठ कि कशका खींचा नहर में बैठा। तो आप लोगों को मैं यही कहता हूँ कि उर्दू या अदब इसकी खिदमत में भी हम लोगों को लगना चाहिए और सही तज्जिया करके ये बताना चाहिए। हम बाहर के मुल्कों में जाते हैं, बड़ा खूबसूरत मंजरनामा पेश कर देते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि दाखिली मंजरनामा बहुत अच्छा नहीं है। ज़बान के हवाले से, अदब के हवाले से बहुत अच्छा है, ज़बान के हवाले से अच्छा नहीं। तो मैं एक बार फिर आपका इस्तक़बाल करता हूँ आपके वतन में, और आप वहाँ की हवाएं लेकर के जो हमारे लिए मुक़द्दस भी हैं और बाइस शरफ़ व इफ्तिखार भी हैं, वो लेकर के आए हैं और हमारी तहजीबी उर्दू को ले करके वहाँ पर फैला रहे हैं। तो इससे बड़ा काम मैं ये समझता हूँ कि अपनी तहजीब, अपनी ज़बान को फैलाना दयार गैर में ऐसी सआदत है कि जिसकी जिस कदर भी मुबारकबाद दी जाए कम। शुक्रिया मंजूर अहमद साहब। इससे पहले कि लईकुल्ला साहब अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं, एक छोटी सी बात मैं भी अर्ज़ करना चाहूँगी कि अभी मुझे भी गैर ममालिक में से एक मुल्क है लंदन, वहाँ जाने का इत्तेफाक हुआ और बड़ी खुशनसीबी मेरी कि मेरा वहाँ जाना हुआ। और एक सेमिनार के सिलसिले में एक बात जो मैंने वहाँ महसूस की वो ये कि वहाँ पर इस वक्त हमारे यहाँ से ज़्यादा अदबी महफिलें सजाई जाती हैं। और एक बात इसमें सबसे बड़ी और सबसे अहम ये है कि उन महफिलों में तमाम शोरा अपने पैसे से जाते हैं। कंजेशन चार्जेस वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 7-8 पाउंड कंजेशन चार्जेस अदा करके वो जाते हैं, मुशायरों में शिरकत करते हैं। एक पैसा शोरा को नहीं दिया जाता। सिर्फ कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर मिलकर मुशायरे ऑर्गेनाइज करती है, कोई अदबी महफिल सजाती है, तो सिर्फ बहुत थोड़ा सा खाने पीने का या चाय पानी का इंतज़ाम किया जाता है। एक और चीज़ जो मैंने वहाँ पर महसूस की वो ये कि नौजवान नस्ल भी उसी तरीके से वहाँ पर हिस्सा ले रही है। मुझे लगता था कि सारे हमारे जो पुराने लोग यहाँ से जा चुके हैं, सिर्फ वही लोग वहाँ पर लंदन, अमेरिका वगैरह में वही लोग प्रोग्राम रखते होंगे, वही लोग मुशायरे सुनते होंगे, वही सामे होंगे, वही शोरा होंगे। लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई वहाँ जाकर। तकरीबन जब मैं वहाँ 15 दिन रही और तकरीबन 8 मुशायरे मैंने वहाँ पर सुने और अदबी नशिस्तों में से कुछ अफसाने की नशिस्तें भी थीं, कुछ और नस्ली नशिस्तें भी। उनमें सब में मैंने देखा कि नौजवान नस्ल बराबर से मौजूद थी। उसमें 8-10 शोरा को वो पहले पढ़वाते हैं और उन 8-10 शोरा को वो क्रिटिसाइज़ नहीं करते, बल्कि वहाँ पर बैठकर वो बाकायदा उनकी तारीफ़ करते हैं, ये कहकर कि हमारी आगे आने वाली नस्लें इन्हीं से चलने वाली हैं। शनाख्त का मसला उनके पास नहीं है, शनाख्त वो अपनी कायम कर चुके हैं, जगह जगह उर्दू के बोर्ड लगा लेते हैं वो, लेकिन वो फ़ख्र महसूस करते हैं और कोई एक पैसा नहीं लेते वो लोग। ये मेरा अपना तजुर्बा था 8-10 दिन का। तो हम लोग भी पैसा नहीं लेंगे। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा, सच मुझे
बहुत अच्छा लगा। एक छोटा सा तजुर्बा मैं आपसे करना चाहूँगी। आज नहीं लेंगे। तारिक साहब आप खुश हो जाइए, आप आगे का रास्ता साफ है आपके लिए। बहुत ही अदब से मैं लईकुल्लाह साहब से दरख्वास्त करूँगी कि इससे पहले कि नहीं, मैं तो खुदा का शुक्र लेती ही नहीं हूँ, तारिक साहब गवाह हैं। और हाँ में ही जवाब देना है तारिक साहब आपको, हाँ में जवाब देना है। लईकुल्लाह साहब तशरीफ ला रहे हैं, मैं चाहूँगी कि आप अपने ख्यालात के साथ फरमाएं। उसके बाद अभी ज़्यादा मंजूर अहमद साहब की सदारत में अपनी शेर नशिस्त का आवाज़ वालेकुम। शुरू करता हूँ निहायत मेहरबान और बहुत ज़्यादा रहमत वाले अल्लाह ताला के नाम से, और आप सब हजरात से, आप हजरात के अंदर वदियत रहमत और मोहब्बत के जो ख़जाने हैं, उनसे उम्मीद करता हूँ कि जो मुझसे आज ताख़ीर हुई उसके लिए आप मुझे माजूर समझेंगे, बाकी मजबूरी थी। तारिक फैज़ी साहब से पहले मैं सदर से इजाज़त। तारिक फैज़ी ने जिस मोहब्बत और खुलूस के साथ मदऊ किया और बार बार रब्ता किया, मैं उसका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। आप सब हजरात का भी मुझे याद आ रहा है शुक्रिया के हवाले से कि मैंने नदवतुल उलमा के 85 साल जश्न में शिरकत की थी, तो उस वक्त मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने जश्न के आखिर में शुक्रिया की जो तकरीर की थी वो अपनी नौयत की मुनफरिद तकरीर थी। माहसल उसका ये था, कहने लगे कि शुक्रिया का लफ्ज़ कसरत इस्तेमाल की वजह से अपनी अहमियत, अपनी इफादियत और अपनी सदाकत खो चुका है। अव्वल तो मैं इस हवाले से इस लफ्ज़ की तकरार करके आपके जज्बात मजबूर नहीं करना चाहता। दूसरी बात यह है कि जिस खुलूस और अपनाइयत से आप हजरात ने शिरकत की है और अपना अनमोल वक्त अदा किया है, उसका शुक्रिया अदा ही नहीं किया जा सकता। मेरे दिल पर, दिमाग पर बड़ा बोझ था इस हवाले से कि तारिक फैज़ी मुसलसल कह रहे थे कि आपके एजाज़ में तकरीब मुनाकिद की जा रही है। बोझ इस हवाले से था कि मैं ख़ुद को इस लायक नहीं समझता कि मेरा एजाज़ किया जाए, लेकिन जब मैं यहाँ हाज़िर हुआ और मलिकज़ादा मंजूर, प्रोफेसर अख्तर उल वासे और बबर साहब और आप जैसी इल्म फ़िक्र, इल्म अदब से आरास्ता शख्सियतें यहाँ मौजूद देखी, तो मुझे एहसास हुआ कि वाकई बुज़ुर्गों को फ़िक्र अदब के हवाले से यह हक़ पहुँचता है कि अपने छोटे को नवाजें। गुज़श्ता दिनों हमारे यहाँ रेडियो जद्दा के डीजी का अलविदाइया था, उनके एजाज़ में अलविदाइया, तो सऊदी अनाउंसर, मारूफ सऊदी अनाउंसर अदनान सईदी ने यही कहा कि हमें बड़ी झिझक थी कि हम अपने डीजी के एजाज़ में ये तकरीब कैसे मुनाकिद करें, क्योंकि वो हम सबसे बड़े हैं। लेकिन जब वज़ारत सक़ाफ़त व इत्तलात की मोहतरम हस्तियाँ यहाँ पहुँची तो हमें लगा कि अब बात बदल गई है और एजाज़ वाकई एजाज़ है। मैं इस एजाज़ को अपने लिए आप लोगों का करम, आप लोगों का फैज़, तारिक फैज़ी का नाम भी इसमें शामिल है, समझता हूँ। सदर मोहतरम मलिकज़ादा मंजूर अहमद साहब ने बजा फरमाया कि मेरी पहली मुलाकात फरीदुल वहीदी साहब के यहाँ हुई थी और मैंने गज़लें रिकॉर्ड की थी, और मुझे आपकी एक गज़ल का एक शेर अब तक याद है और सामीन ने बड़ा पसंद भी किया था, और उस हवाले से मुसलसल फरमाइशें हमें मौसूल होती रहती हैं। रोशन चेहरा, भीगी जुल्फ़ें, किस को दूँ किस पर तरजीह, एक कसीदा बहुत पसंद की गई थी आपकी ये गज़ल। जहाँ तक मशरिक़ वुस्ता में उर्दू ज़बानों अदब की तरवीज व इशाअत का ताल्लुक़ है, तो मैं मिस्र के हवाले से पहले अर्ज़ करना चाहूँगा कि मलिकज़ादा मंजूर साहब ने जो एक लकीर खींची है ज़बान और अदब के दरमियान, वो वजह लकीर है। मिस्र के अंदर बेशक उर्दू ज़बान के हवाले से काम नहीं हो रहा है, लेकिन अदब के हवाले से इंतहाई मायारी और बड़ा काम हो रहा है। मिस्र में अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह के जितने दीवान हैं, जितना कलाम है, शेरी, नसरी, वो सब अरबी में मुंतकिल किया जा चुका है, और ये सारा काम मिस्री स्कॉलर्स ने किया है। इसी तरीके से
हिंदुस्तान के तमाम अहम बड़े शुअरा का कलाम अरबी ज़बान में मुंतकिल कर दिया गया है, और ये मुंतकिल करने वाले बड़े सग़ीर के नहीं बल्कि ख़ुद मिस्र के स्कॉलर्स हैं। ये अलग बात है कि मिस्र की कई यूनिवर्सिटियों में सबसे पहले काहिरा यूनिवर्सिटी, उसके बाद अल-अज़हर यूनिवर्सिटी, फिर ऐन शम्स यूनिवर्सिटी, उलमान यूनिवर्सिटी, इस्कंदरिया यूनिवर्सिटी, इन यूनिवर्सिटियों में बाकायदा उर्दू के शोबे कायम हैं और वहाँ उर्दू ज़बान और उर्दू अदब दोनों बाकायदगी के साथ सिखाए जाते हैं। और मिस्र के तलबा स्कॉलर्स PhD के लिए, MPhil के लिए, MA के लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दानिशगाहों का रुख कर रहे हैं। अब तक सैकड़ों मकाले MPhil और PhD के तैयार हो चुके हैं, उनका वाइवा हो चुका है और मिस्री दानिशगाहों में महफूज है। मिस्र में सन 52 से उर्दू प्रोग्राम हो रहा है, और मिस्री ही नहीं, मिस्र में मौजूद मुख्तलिफ़ बर्र आज़मों के नुमाइंदा तलबा, असातिज़ा, स्कॉलर्स उर्दू से फैज़ हासिल कर रही हैं मिस्र में रहकर। ख़ास तौर पर अदब से, ज़बान के हवाले से मिस्र का किरदार यकीनन कमज़ोर है। जहाँ तक सऊदी अरब और GCC ममालिक का ताल्लुक़ है, तो इस हवाले से मैं अर्ज़ करूँगा कि सऊदी अरब और GCC ममालिक में अदब के साथ साथ ज़बान के लिए भी काफ़ी मेहनत हो रही है, काफ़ी काम हो रहा है। जहाँ तक अदब का ताल्लुक़ है, तो जैसा कि मलिकज़ादा मंजूर अहमद साहब ने और प्रोफेसर अब्दुल वासी साहब ने इशारा किया, मुशायरे बेशुमार मुनक़िद हो रहे हैं जद्दा में, रियाज़ में, दम्माम में, सऊदी अरब के मुख्तलिफ़ शहरों में। और ये शुअरा न सिर्फ ये कि बर्र सग़ीर पाक व हिंद से गए हुए हैं और वहाँ बसिलसिले रोज़गार मुक़ीम हैं, इस हवाले से वो शेर व शायरी से शग़फ़ रखते हैं, बल्कि यहाँ से भी मुख्तलिफ़ औक़ात में पाकिस्तान से, हिंदुस्तान से शुअरा को मदऊ किया जाता है और महफ़िलें सजाई जाती हैं। ये महफ़िलें शेर व अदब, शेर के हवाले से भी होती हैं और नस्र के हवाले से भी। मैं एक प्रोग्राम करता हूँ रेडियो सऊदी अरब के शोबे उर्दू से, शायरों की दुनिया। इस प्रोग्राम में बड़े सग़ीर के कई सौ शुअरा को मुतारफ़ कराया जा चुका है। इसमें ख़ास तौर पर उन शुअरा के साथ, उन शुअरा के तारुफ़ का ज़्यादा अहतमाम किया गया जो GCC ममालिक में मुक़ीम है। ज़बान का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो पाकिस्तान, हिंदुस्तान के जो सफारत खाने हैं, इनके मातहत अव्वल तो तमाम बड़े बड़े शहरों में सऊदी अरब के अंदर स्कूल्स हैं और उन सब में उर्दू ज़बान पढ़ाई जाती है। उर्दू ज़बान के हवाले से उर्दू ज़बान में मुबाहसे होते हैं, मुकालमे होते हैं, मुख्तलिफ़ प्रोग्राम बच्चों के दरमियान मुनक़िद किए जाते हैं। इनके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर ने बहुत सारे स्कूल्स कायम कर रखे हैं जिनमें उर्दू ज़बान की तालीम नई नस्ल को दी जा रही है। ये भी काम बड़े अच्छे पैमाने पर हो रहा है। रेडियो सऊदी अरब का शोबे उर्दू है, उसका 3 घंटे का प्रोग्राम है। मकामी वक्त के मुताबिक 3 से 6 बजे तक रोज़ाना उर्दू में ख़बरें, उर्दू में सियासी तबसरे, तज़िये, दीनी प्रोग्राम, सकाफ़ती प्रोग्राम, तफरीही प्रोग्राम होते हैं। और जैसा कि अब्दुल वासी साहब ने कहा कि 1994 ईस्वी से उर्दू न्यूज़ बाकायदगी से मुकम्मल उर्दू अखबार जद्दा से शाया हो रहा है। इस जद्दा के साथ साथ रियाज़, बहरैन, दुबई से भी शाया होता है। उर्दू मैगज़ीन शाया होता है, रोशनी है, मौज़ूआत मुख्तलिफ़ हैं। सबसे अहम काम उर्दू न्यूज़ ने और रेडियो सऊदी अरब के शोबे उर्दू ने जो किया है, वो उर्दू तहज़ीब के फ़रोग़ के अंदर जो किरदार, मुमकिन किरदार अदा किया जा सकता था, वो किया गया है, अदा किया गया है और किया जा रहा है। उर्दू तहज़ीब नाम है प्यार और मोहब्बत की तहज़ीब का। मैं उर्दू को मुसलमानों की ज़बान नहीं मानता, लेकिन इस्लामी फ़िक्र की नुमाइंदा ज़ुबान ज़रूर कहता हूँ।
کیونکہ اسلام نے جو ایک انسانی اخوت اور انسانی برادری کا پیغام دیا ہے اور اس پیغام کو اپنی جملہ تعلیمات کے اندر پیوست اور جاگزی کیا ہے، اس حوالے سے اگر اردو کو دیکھیں تو اردو اسلامی سوچ کی، اسلامی فکر کی، اسلامی پیغام کی نمائندہ زبان ہمیں لگتی ہے، اور اسی فکر کو عام کیا جا رہا ہے اردو نیوز کے ذریعے، اسی سوچ کو آگے بڑھایا جا رہا ہے اردو میگزین کے ذریعے، اور اسی سوچ کو رائج کیا جا رہا ہے ریڈیو سعودی عرب کے اردو پروگراموں کے حوالے سے۔ یہ درست ہے کہ ہندوستان کے اندر اردو ادب پر بہت زیادہ اور اردو زبان پر توجہ بےحد کم ہوئی ہے، جیسا کہ پروفیسر صاحب نے فرمایا۔ میں نہیں کہتا کہ جی سی سی ممالک میں اردو زبان اسی انداز سے ترقی پا رہی ہے جس انداز سے ترقی کرنی چاہیے، لیکن صورتحال مایوس کن نہیں ہے، بلکہ خاصی امید افزا ہے، کیونکہ پرانی نسلیں نئی نسلوں کو اردو زبان سے واقف کرا رہی ہیں اور اس کو اپنا فرض سمجھ کر یہ کام انجام دے رہی ہیں، اور جن لوگوں کے یہاں اس حوالے سے کوتاہی پائی جا رہی ہے، بے شک کوتاہی بھی ہے، تو کوتاہی کی نشاندہی بھی ہو رہی ہے اور کوتاہی پر نکتہ چینی بھی ہو رہی ہے، اور نکتہ چینی کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ ایک بات یہ ہوگی، جہاں تک مشرق یہ خلیجی ممالک خصوصاً سعودی عرب میں اردو موضوعات کا تعلق ہے، تو اردو کے مختلف موضوعات پر وہاں کام ہو رہا ہے، سائنس میں بھی لکھ رہے ہیں، اسلامیات پر بھی لکھا جا رہا ہے۔ اردو کے اندر مختلف مذاہب کے ماننے والے جو جمع ہیں سعودی عرب میں، میرے خیال سے دنیا کا کوئی ایسا، شاید ہی کوئی ایسا ملک ہو جہاں اتنی بڑی تعداد میں بر صغیر کے لوگ جمع ہوں، اردو جاننے والے، اردو بولنے والے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اردو سے پیار کرنے والے، جتنا کہ سعودی عرب میں جمع ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ مختلف مذاہب سے، مختلف فکری اسکولوں سے، مختلف فرقوں سے تعلق رکھنے والے کثیر تعداد میں سعودی عرب کے اندر موجود ہیں، اور سعودی عرب میں جو اردو کی ترویج و اشاعت اور اردو تہذیب کی ترویج و اشاعت اور فروغ کو اپنے ذمے لیے ہوئے ہیں، یا یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا فرض ہے کہ اردو تہذیب کا ارتقاء یہاں ہو، تو وہ اسلامی فکر کو پیش نظر رکھ کر کہ ہم سب بھائی ہیں، سب بابا آدم اور ماما حوا کی اولاد ہیں، اس سوچ کے ذریعے تمام مذاہب کے ماننے والوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ کوشش بلا شبہ کم از کم 80% اردو ہی میں ہو رہی ہے، اور یہ بڑا حوصلہ افزا پہلو ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا پہلو ہے کہ جس کے بارے میں ہو سکتا ہے ہندوستان کے بعض حلقوں میں کچھ غلط فہمیاں بھی پائی جاتی ہوں، تو یہ میرا فرض بنتا تھا کہ میں اس پہلو کو اجاگر کروں، تاکہ اس حوالے سے اگر کچھ شبہ و شبہات پائے جاتے ہوں تو وہ دور ہوں۔ آخر میں ایک بار پھر میں صدر جلسہ پروفیسر ڈاکٹر ملک زادہ منظور، جناب ببر صاحب، محترمہ وسیم راشد، طارق فیضی اور اختر واسع کے لیے انتہائی مقبولیت اور انتہائی محبت، انتہائی قدر و منزلت کے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے جو یہ محفل سجائی ہے، میں اس کے لیے یہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہی آپ کو اس کا بہترین اجر دے سکتا ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ، جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت بہت شکریہ پروفیسر علیہ اللہ صاحب، اور اب ہم اپنی شعری نشست کا آغاز کر رہے ہیں۔ کافی نام ہے میرے پاس فہرست میں، اور کافی شعراء بھی یہاں موجود ہیں، اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ پروفیسر ملک زادہ منظور احمد صاحب کی صدارت میں یہ شعری نشست منعقد کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے مجھے دے دیجیے، اس میں نام ہے سب شعراء کے، جی کس کا نام ہے؟
बात बताते जाइएगा। मुझे नाम पहले नाम अनाउंस करने दीजिए। पहले किसका बोला था? हालांकि इस बार मेरी ये शदीद ख्वाहिश थी कि पहले हम अपने बुजुर्ग शोरा को सुने, क्योंकि जब तक हमारे बुजुर्ग शोरा को सुनने का वक्त आता है तब तक हमारा हॉल उनका इंतज़ार करते करते काफ़ी हद तक खाली हो चुका है। लेकिन खुदा का करम है कि अभी आप लोग मौजूद हैं सभी, और चूँकि मैं ये ऐसा नहीं कर पाऊँगी कि हमारे उस्ताद शोरा यहाँ पर अभी मौजूद रहेंगे, और मैं ये भी चाहती थी कि नौजवान नस्ल को ही पहले मौका दिया जाए। तो नौजवान नस्ल में सबसे पहले जो मेरा पास नाम है वो है अब्दुल हमीद। सदर मोहतरम मेहमान खुसूसी और मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैं इस नशिस्तगाह में सबसे पीछे बैठा था, ये सोचकर कि मैं सिर्फ देखने और सुनने के लिए आया इस्तीफादे के लिए। जब मेरा नाम पुकारा गया तो दिल की धड़कन बंद हो गई। मैं पढ़ने के लायक नहीं हूँ, लेकिन चौंक गया मैं बिल्कुल, और मेरे पास कुछ है भी नहीं। बहरहाल एक शेर में दो अशार मैं ज़रा मौजूदा हालात के तनाजुर में सदर मोहतरम की इजाज़त के साथ एकदम नौवारिद हूँ, बिल्कुल तालिब हूँ, इसलिए इन माजरतों के साथ ज़रा समाप्त करवाइए। आदमी गर्क है बहरे लज़्ज़ात में, आदमी गर्क है बहरे लज़्ज़ात में, आदमी गर्क है बहरे लज़्ज़ात में। देखिए ये हाल होता है जब अचानक नाम लिया जाता है। ये अशार मैंने महाबलेश्वर में सुनाया है, शहर में। जी आपको हमने कल बताया था कि आप शेर होंगे। बिल्कुल राह चलते वक्त आपने मजाक आज तारीख सबसे यही बात कह रहे थे, पहले से बता दिया गया, किसी को नहीं बताएगा जो कुछ नहीं है। यही खूबी है इनकी, माशाल्लाह इसी तरह कामयाब भी हो जाते हैं इनका प्रोग्राम। बिस्मिल्लाह पढ़ जाए जो पढ़ रहे थे पढ़िए, वो याद नहीं आ रहा, मैं दूसरे पढ़ रहा हूँ। एक गज़ल के 2-3 शेर हैं, अब अचानक तो याद नहीं आ सकते। सुबह की रोशनी रात की तिरगी, सुबह की रोशनी रात की तिरगी, जैसे तेरी तवज्जो तेरी बेरुखी। क्या बात, जैसे तेरी तवज्जो तेरी बेरुखी। मौत गर तेरी राहों में मुझको मिले, ये बहुत लंबी गज़ल है, 8-10 अशार की, 2-3 अशार। मौत गर तेरी राहों में मुझको मिले, मैं ये समझूं मुझे मिल गई ज़िंदगी, मैं ये समझूं मुझे मिल गई ज़िंदगी। और चंद जिंदा में है, इस शेर से हो सकता है किसी को इख्तिलाफ, लेकिन ये मेरा शेर है, मेरी फिक्र है। चंद जिंदा में है चंद है दार पर, क्या बात है, चंद जिंदा में है चंद है दार पर, यार इसको बाहर निकालो पहले। माँ सेवा इनके अब है कहाँ आदमी, वाह, माँ सेवा इनके अब है कहाँ आदमी। और सारे जो अशार मुझे पसंद है, अगर मुझे दोबारा कभी तारे फैज़ साहब मैं दरख्वास्त करता हूँ कि एक बार अगर संजीदगी से बोल देते हो गए। आ जाइए आप। मैंने मिट्टी के खिलौनों को उड़ा दी चादर, जब किसी अब्र को आकाश पे आते देखा। और ये नाम है डॉक्टर रहमान मुसव्विर साहब। आइए मुसव्विर साहब। क्या बात है, बिस्मिल्लाह। ऐसे गजल के उन्हीं की नजर से शोबा हिंदी से मेरा ताल्लुक़ है, लेकिन उर्दू में शेर कहने की कोशिश करता हूँ। बहरहाल कितनी कामयाबी मिलती है या मिली है उसकी शुरू करता हूँ कि बदन से रोशनी का काफिला गुजरता है, बदन से रोशनी का काफिला गुजरता है, वो जब हथेली पे होठों के चांद रखता है। क्या कहना है, बदन से रोशनी का काफिला गुजरता है, वो जब हथेली पे होठों के चांद रखता है, और निशान कोई नहीं आहटें मुसलसल हैं,
निशान कोई नहीं, आहटें मुसलसल हैं, ये कौन है जो मेरे साथ साथ चलता है? ये कौन है? मेरे साथ साथ चलता है। निशान कोई नहीं, आहटें मुसलसल हैं, निशान कोई नहीं, निशान कोई नहीं, आहटें मुसलसल हैं, ये कौन है जो मेरे साथ साथ चलता है? ये कौन है जो मेरे साथ साथ चलता है? और 4 मिसरे और देखिए कि वो मेरे झूठ का भी एतबार करती है, वो मेरे झूठ का भी एतबार करती है, ये बात मुझको बहुत शर्मसार करती है कि अजीज दोस्त बिरादर खफा है सब मुझसे, बस एक माँ है मुझे अब भी प्यार करती है। क्या कहने बाबा, बस एक माँ है, बस एक माँ है मुझे अब भी प्यार करती है। एक मतलब एक शेर देखिए कि नीम जैसा मेरा लहजा और वो मीठा बहुत, नीम जैसा मेरा लहजा और वो मीठा बहुत, फिर भी उसने दोस्ती के नाम पर झेला बहुत, फिर भी उसने दोस्ती के नाम पर झेला बहुत। और देखे कि चांद है पानी में उतरा और मैं बेचैन हूँ, चांद है पानी में उतरा और मैं बेचैन हूँ, हाथ में रस्सी है छोटी और कुआं गहरा बहुत, हाथ में रस्सी है छोटी और कुआं गहरा बहुत। चांद है पानी में उतरा और मैं बेचैन हूँ, चांद है पानी में उतरा और मैं बेचैन हूँ, हाथ में रस्सी है छोटी और कुआं गहरा बहुत, और कुआं गहरा बहुत। और एक मतलब एक दो शेर और देखिए कि जो हर एक बात पर लड़ता बहुत था, जो हर एक बात पर लड़ता बहुत था, बिछड़ते वक्त वो रोया बहुत था, जो हर एक बात पर हंसता बहुत, जो हर एक बात पर लड़ता बहुत था, बिछड़ते वक्त वो रोया बहुत था। मेरी सांसें सुनाई दे रही थी, मेरी सांसें सुनाई दे रही थी, मेरे कमरे में सन्नाटा बहुत था, मेरे कमरे में सन्नाटा बहुत था। और इसी सिलसिले का किरदार के मैं अपनी जिद में उसको छोड़ आया, मैं अपनी जिद में उसको छोड़ आया, वगरना गांव ने रोका बहुत था, वगरना गांव ने रोका बहुत था। जो हर एक बात में लड़ता बहुत था, बिछड़ते वक्त वो रोया बहुत था। बहुत खूबसूरत। और अभी आपने झेलने की बात की, आप यकीन जानिए हम बहुत महसूस हुए आपकी शायरी से, और बहुत खूबसूरत अशार आपने पेश किए। और इसके बाद मुझे एक नाम दिया गया है डॉक्टर अताउल्लाह खां संजरी साहब का। मैं अगर वो यहाँ पर मौजूद हैं तो आइए संजरी साहब। और ये भी मुझे अफसोस है कि कबाब में हड्डी शहरों के लिए नहीं कर पाती। 15 मिनट पहले मैंने उन्होंने साहब को फ़ोन किया, वैसे वो कहाँ है, लाइब्रेरी में बैठा हूँ। उन्होंने बताया कि एक नशिस्त आप जाने के करीब में तो आ जाओ, तो लाइब्रेरी से सीधे यहाँ पे आया। तो मैं यहाँ पे आया था, आपकी तकरीर हो रही थी और मैं कहता हूँ सुराग नहीं, लेकिन उर्दू का मामला मैं कहीं उर्दू के कानून से बात करूँ, तो मैंने चिट की मखलूरी साहब कि केरल में जो उर्दू की सूरत हाल है 5 मिनट में मैं बता दूँ, ना ही वक्त का जो एक शायर है। तो सबसे पहले केरल का जोग्राफिया ये है, केरल 3 हिस्सों में बटा हुआ है। शिमाली हिस्से मलबार कहते हैं, मलबार 5 अजला पर मुश्तमिल है। यहाँ पर उर्दू की सूरत हाल है, फजा साजगार है, हुकूमत के पास तासुब भी कम है। सूरत हाल ये है कि उर्दू दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तकरीबन 2500 उर्दू टीचर्स हैं। अब यूनिवर्सिटी में भी इसका इंतज़ाम हो गया है। मैं उसी यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ हूँ, उसका नाम श्री शंकराचार्य यूनिवर्सिटी। शंकराचार्य की मुकाम पैदाइश है और उसके इलाक़ाई मराकज़ हैं जो सारे केरल में फैले हुए हैं, और एक इलाक़ाई मरकज़ मलबार में है जिसका भी मैंने जिक्र किया।
और टीचर्स की ट्रेनिंग का इंतज़ाम भी होने लगा है। सोलन CAL जहाँ पे इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे लोग आकर टीचर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का एक स्टडी सेंटर भी वहाँ पर हायर हो चुका है, जिसकी कोऑर्डिनेटरशिप मैंने की थी। और उर्दू किताबों जो बेसिक ग्रास रूट लेवल पे जो काम हो रहा है, उर्दू किताबें वहाँ पर मुहैया करवाने का काम था। नेशनल काउंसिल ऑफ प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, तो वहाँ पे सेल्स काउंटर भी कायम किया गया है। मुझे खुशी इस बात की है कि इन सारे मामलों में मैं वहाँ पर लगा हुआ हूँ, मेरे साथ सारी टीम है। और मज़े की बात यह है कि केरल के स्टूडेंट्स, और से सुनिएगा तवज्जो चाहता हूँ, अब तक 8 स्टूडेंट्स UGC का नेट क्लियर कर चुके हैं। अब तो सूरत हाल ये है कि वहाँ की ज़मीन ही जो है ज़रख़ीज़ है, तो हमारी छोटी सी मेहनत से बहुत काम हो सकता है। बहुत पहले मैं लखनऊ गया हुआ था, तो हुजूर साहब से भी मुलाकात की थी, उनसे किताबें भी ले गए थे। और जो है बेहतर ये है कि साहब यहाँ से मतलब जितने भी एकेडमीज़ हैं, आप प्रेस के ज़रिए बात ये कर सकते हैं कि एकेडमीज़ की अगर मदद मिले तो हम बहुत काम कर सकते हैं। और शायरों के लिए खुशखबरी ये है कि इंशाल्लाह अगले साल हम चाहते हैं कि मैं मुखलिस साहब से शेयर कर रहा था कि वसाइल चूँकि महदूद होते हैं और हर साल यूनिवर्सिटी सेमिनार करने के लिए पैसे भी देती है, तो नहीं तो मुकामी लोगों से मैंने बात की है, अगर वो तैयार हो जाए तो मुझे ऐसे शोरा की फहरिस्त चाहिए जो सरेदस अपने खर्च पर आए। उसमें से इतने दो शायर भी हमें मिल जाते हैं तो मैं समझूंगा कि मेरी यहाँ आने की पूरा काम देखिए, मैं ये चाहूँगी कि वो जी हाँ, मैं एक ऐसी शायरा को बुला रही हूँ जिनका शेरी मजमुआ है चांद के साथ जागती आंखें। नाज़े गुल को नज़ाकत पे चमन में ऐसा इसने देखे ही नहीं नाजो नज़ाकत वाले। जी हाँ, मुसरत अंजुम साहिबा को मैं दावत दे रही हूँ ज़हमत कलाम के लिए। मुसरत अंजुम साहिबा। जोर से पढ़ना। ताज़ा गज़ल का मतलब रेत के कदमों से लिपटी तिश्नगी बातें करे, रेत के कदमों से तिश्नगी बातें करे, बातें करे और साथ वो चलने लगे खामोश। साथ वो चलने लगे। रेत के कदमों से लिपटी तिश्नगी बातें करे, साथ वो चलने लगे खामोशी बातें करे। ये गुजरते सर्द लम्हे जिंदगी के सांस लें, ये गुजरते सर्द लम्हे जिंदगी के सांस लें। हौसला इतना बढ़ा कि जिंदगी बातें करे। आप ही हौसला बढ़ाइए जरा, मेहरबानी होगी। थोड़ा सा ऊंचा करिए थोड़ा। कान में सरगोशियाँ करती हैं कितनी हसरतें, कितनी हसरतें। एक दिन मौका मिले तो हर खुशी बातें, एक दिन मौका मिले तो हर खुशी बातें करे। और दूर होती आहटों को पास आने दे कभी, पास आने दे कभी। इस कदर नज़दीक जाके वे बसी बातें करे, इस कदर नज़दीक जाके वे बसी बातें करे। और मुख्तार शरीयों के ख्वाब में तारीखियाँ करती हैं अंजुम दिल लगी, ख्वाब में तारीखियाँ हैं अंजुम दिल लगी। और जहाँ मैं आप खोलूँ रोशनी बातें, जहाँ मैं आप खोलूँ रोशनी बातें करे। और एक गज़ल मेरे मजमूए से मुख्तार शरीयों के सिलसिला रखता है दिल से इस तरह पैहम कोई,
सिलसिला रखता है दिल से इस तरह बहम कोई, मेरी आंखों में सजाता है नए मौसम कोई। वाह अच्छा है मेरी आंखों में सजाता है इस नए तरह मौसम कोई, और वो मुखातिब इस तरह होता है मुझसे ख्वाब में। वो मुखातिब इस तरह मुखातिब इस होता है तरह मुझसे होता है ख्वाब मुझसे में। ख्वाब में, सुबह दम जैसे बिखेरे फूल पर शबनम कोई। इससे बढ़िया अच्छा शेर है ये, अच्छा शेर मुखातिब इस तरह होता है मुझसे ख्वाब में, सुबह दम जैसे बिखेरे फूल पर शबनम कोई, और दिल की मंजिल दूसरी है, जहन के रास्ते अलग। दिल की मंजिल दूसरी है, जहन के रास्ते अलग, इसलिए होता नहीं है फैसला बाहम कोई, इसलिए होता नहीं है फैसला बाहम कोई, और दिल की बर्बादी पे अक्सर नोहा रहती है रात। दिल की बर्बादी पे अक्सर नोहा रहती है रात, रोज करता है हमारी जात में मातम कोई। वो आए बस में इतना तो वो आए बस में इतना तो उम्मीद ने देखा, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी न रही। आ गई। एक ऐसी हस्ती